Okay, let's try a question. Okay, let's try this question. A survey of 500 television watchers. So, yeah, obviously, what will this be? You know, universal search, is it? So now a survey of 500 television watchers. So the total, of course. तो मैंने सर्वे किया है for 500 television users. So this is N of U. 285 watch football. You can consider this as A. So N of A is equal to 285 है ना. तो अपन फुटबॉल को A ले रहे हैं ना. Let's keep this in mind. So let's note somewhere here. A is football, right? B is hockey, it's mentioned here, and C is basketball. That means this has to be, probably this is surveys maybe done in US. Maybe. अब मैं यहाँ बास्केटबॉल पे हूँ देखता है. Okay. So what did it give us? कि N of U is given to us. How much is this? 5. अच्छा. इसके बाद 285 watch football माने N of A is 285. अच्छा. And 195 watch hockey. इसका मतलब N of B ये होगा 195. And 115 watch basketball. Yes, 115 watch basketball. अच्छा, इसके बाद 45 watch football and basketball. Be careful. Football and basketball. माने this is N of A intersections. This is given to be 45. And 70 watch football and hockey. 70 watch football and hockey. माने football and hockey, you know, intersection. And 50 watch hockey and basketball, B intersection. And 50 do not watch any of the three games. 50 do not watch any of the three. कौन सा ये 12 हो जाता है. So N of A complement intersection B complement intersection C complement. So ये दो how much? ये भी 50 है क्या? अच्छा, ये भी 50 है ना. तो you could easily guess first question. So what is given to us माने अपना English केस में we basically consider as neither, isn't it? Neither का मतलब the very first thing we find is either, है ना. तो पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड how many watch at least one of the games. Number is number of viewers who watch at least one of the games. At least one of the games. कम से कम एक. मैंने basically what is he talking about? Union. पक्का 100% sure. At least one of the games, either A or B or C, या either of the games, है ना. इन सबका मतलब यूनियन होता है, राइट. अच्छा, तो बेसिकली N of A यूनियन B यूनियन C, इसके क्या करेंगे हम जनरली यूनिवर्सल सेट में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? नीदर. N of A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट. यूनिवर्सल का कितना है? बेसिकली 500. इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 50. So what do we get? 450. So N of A union B union C. अच्छा, नीदर से हमने आइदर फाइंड कर लिया और आइदर से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं? Who watch all the three games. तो आपका सेकंड क्वेश्चन होगा नंबर ऑफ व्यूअर्स who watch all the three games. Number of viewers who watch all the three games. And it is basically now intersection B intersection C.
अच्छा ये कैसे फाइंड करें? ये वाला फॉर्मूला इसमें डालेंगे प्लेस करेंगे, है ना? अच्छा ए यूनियन बी यूनियन सी तो आया 450, तो 450 इज इक्वल टू n of a which is 285, n of b 195 plus n of c 115, है ना, minus n of a intersection b 70, b intersection c 50, a intersection c 45, correct? 50 45 इसके बाद प्लस n of a intersection b intersection c, right? So सब सिंगल सेट का एडिशन, दो सेट्स का सब्ट्रैक्शन और 3 सेट्स का एडिशन, है ना? ऐसा हमें करना है। बस कैलकुलेशन पार्ट है यहाँ, तो एलएचएस का 450 वैसे ही वैसे। अच्छा तो ये 70 प्लस 50 120 और ये 165, इसमें से 165 गया 30 बचेगा, है ना? यहाँ 30 है और इनका एडिशन 430 है यहाँ पक्का, प्लस n of a intersection b intersection c, so ultimately therefore n of a intersection b intersection c is 20, सही है पक्का? check the calculation part, हाँ सही है, ठीक है? अब वो पूरा कहानी एग्जैक्टली 2 गेम्स वगैरह वगैरह ना, तो फटाफट कर लेते हैं वो भी। अब क्वेश्चन होगा फाइंड द नंबर ऑफ व्यूअर्स who watch exactly से पहले exactly 1 वाला करेंगे, है ना? who watch only football, है ना? number of viewers who watch only football, so from the figure is pretty obvious, only football का मतलब ये वाला, है ना? तो इसके लिए क्या करना है कि उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इंटरसेक्शन बी एज वेल एज सी, लेकिन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड करना है ये वाला, वही तो किया हमने, राइट? तो ओनली ए के लिए ए में से इंटरसेक्शन वाले सब्ट्रैक्ट किया, तो तीनों को कॉमन वाला एक बार ऐड किया हमने, क्योंकि ये 2 बार सब्ट्रैक्ट हो चुका है, राइट? ओनली फुटबॉल माने n of a minus n of a intersection b minus n of plus n of a intersection b intersection c, n of a is 285 minus a intersection b 70 minus a intersection c plus तीनों का इंटरसेक्शन है 20, तो how much would this be? 240 170 190, सही है? So these are the ones who watch only football, है ना? अच्छा नेक्स्ट वाला क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? only अच्छा only हॉकी का मतलब only B is it trying to say only B, अच्छा only B के लिए क्या करें? what should I write here? n of B minus n of B intersection, so generally write intersection B minus n of B intersection C plus n of B intersection C, अच्छा only football actually इसको डिनोट करने का तरीका what is that? n of A but not B and not C, n of B is how much? 195 ये वाला minus A intersection B 70 B intersection C 50 plus A intersection B intersection C is 20, so 70 plus 50 120 तो 195 हो जाएगा, सही, राइट? अच्छा सिमिलरली only C, है ना?
ओनली सी का मतलब ओनली बास्केटबॉल, ऊपर होगा ओनली बास्केटबॉल। माने n ऑफ c माइनस n ऑफ c n ऑफ प्लस n ऑफ a intersection b intersection c। अच्छा n of c is how much 115 minus n of a intersection c 45 b intersection c 80 plus 20 राइट। अच्छा इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया 25 75 25 20 45 सही। इस 95 से सब्ट्रैक्ट किया 95 सब्ट्रैक्ट किया 20 में 20 40 होगा, 40 होगा शायद से, इज इट? So probably if he has asked only football, only hockey, only basketball, probably he will also ask find the viewers who watched only one of the games। उसका मतलब क्या होता है? only one का मतलब कि कौन सा है वो? हो सकता है only football, maybe they are huge fans of hockey, maybe they are huge fans of basketball, and they don't even watch other games, सिर्फ फुटबॉल देखते हो लोग या सिर्फ हॉकी या सिर्फ बास्केटबॉल, है ना? तो अब उन्होंने बोला कि ओनली वन ऑफ देम, मतलब कहते हैं ओनली फुटबॉल और ओनली हॉकी और ओनली बास्केटबॉल, माने इन तीनों का एडिशन। तो 190 285 285 325, आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? 325, करेक्ट। अच्छा तो और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें? व्हाट अदर क्वेश्चंस कैन देयर बी? ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 6 क्वेश्चन आपको लिखना है, मान लीजिए आप लोग कर रहे हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 6, एग्जैक्टली नंबर ऑफ व्यूअर्स हु वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स, एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स, राइट। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 होगा viewers who watch only football and hockey, only football and hockey, ये कैसे बात करें? only football and hockey का मतलब A intersection B but not C intersection C complement। अच्छा how do you find that? ये वाला है, इसके लिए क्या करेंगे? B में से सब्ट्रैक्ट करना है, हो जाएगा, कर लोगे। अच्छा उसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? ओनली हॉकी एंड बास्केटबॉल, ओनली हॉकी एंड बास्केटबॉल। उसके बाद ओनली फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, ओनली फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। और इसके नेक्स्ट वाला एग्जैक्टली 2 ऑफ द गेम्स, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 गेम्स, है ना? इन तीनों का एडिशन। So with this we finish sets, बस यही है set, इसके ज़्यादा कुछ नहीं। So if you look at what we have basically, ये sets का पहले definition, तो छोटे मोटे definition, उसके बाद operational sets, जैसा ऑपरेशन ऑफ सेट्स हो गया, इट्स मोर इज डन, राइट। और उसके बाद वेन डायग्राम, एक्चुअली वेन डायग्राम गिव्स यू द होल पिक्चर, है ना, ओवरव्यू। तो उसमें इंपॉर्टेंट वाले हैं 2 सेट्स वाले या 3 सेट्स वाले, है ना। अच्छा सो उसमें भी ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, देखो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेट्स की इंटरेस्टिंग, रिगार्डिंग सेट्स इंटरेस्टिंग थिंग इज कि वी नॉट ओनली यूज सेट्स इन सेट्स, वी यूज सेट्स के लॉज इन लॉजिक, है ना। एंड we also use sets in probability, we also use sets in permutations and combinations, है ना। यानी ये कॉन्सेप्ट जो अपन बाकी के चैप्टर में भी यूज करेंगे, राइट। और लॉजिक में देखो कैसे क्वेश्चंस आ गए, है ना, जैसे कि एक सैंपल क्वेश्चन एज टू हाउ वी यूज सेट्स इन लॉजिक, है ना, वो एक क्वेश्चन करता है जस्ट टू
मेक श्योर मैंने भी ये चीज है। तो अपन लॉजिक के बाद भी वापस अपन को डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे कि क्वेश्चन ऐसा होगा कि नेगेशन p और q, नेगेशन p एंड q और नेगेट p एंड नेगेशन q और p इंटरसेक्शन प्रूव दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू। अच्छा, क्वेश्चन ये होगा, जेडब्ल्यू क्वेश्चन ये होगा, द गिवन स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब वी नो दैट कि इसमें डिफिकल्टी ये होगा कि इसमें कितने तीन स्टेटमेंट है। मैंने आपको इसका ट्रूथ टेबल, इसका ट्रूथ टेबल, इसका ट्रूथ टेबल एक ही इसमें वैसे भी, और फिर ऑप्शंस के भी ट्रूथ टेबल बनाओ। तो फिर दो स्टेटमेंट्स लॉजिकली इक्विवेलेंट जिसका कॉलम मैच करेंगे वो आपका फाइनल आंसर होगा, राइट। लेकिन यू नो यूजिंग सेट्स वी कैन डू दिस इन रियल क्विक टाइम। वो कैसे, लेट्स सी। अच्छा, तो ये जो है एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, एंड का मतलब, अच्छा पी क्यू का मतलब दो सेट्स है यहाँ, माने एक सेट ए है और सेट बी है, करेक्ट। अच्छा, P एंड Q का मतलब A इंटरसेक्शन B, कौन सा वाला रीजन होगा, ये वाला। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, नेगेशन P का मतलब इज एक्चुअली A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ओनली B, ये वाला, इज इट। अच्छा, अब इसका मतलब A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ओनली A। अच्छा, इन तीनों को यूनियन करने से कौन सा सेट आएगा, isn't it? देखो ये ओनली है, A इंटरसेक्शन B ओनली, तीनों को यूनियन, तीनों को ऐड किया तो दिस ऑब्वियसली A यूनियन B, और A यूनियन B का मतलब P और ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो वन ऑफ द आंसर्स विल बी P और Q, राइट। तो क्या है कि यू कुड एक्चुअली यूज सेट्स इन लॉजिक, इन सॉल्विंग लॉजिक क्वेश्चंस, है ना। दिस इज वन पॉइंट वेयर वी कुड यूज सेट्स, राइट। सो बिफोर वी फाइंड आउट आवर क्लास, एक क्वेश्चन है, मैंने प्रॉब्ली सेट्स का प्रॉब्ली टफेस्ट क्वेश्चन है ना, एकदम 2009 में आया था, इट्स अ टफ क्वेश्चन, है ना। लेट्स सी। And you know we need to do this very carefully, otherwise we'll get confused. You can get confused pretty easily, you know. Let's see. So right now, this will be question number 2, isn't it? Suppose A1, A2, A3 and so on, A30 are 30 sets, right? A1, A2, A3 and so on, A30 are 30 sets with 5 elements each. With 5 elements each. क्योंकि इसमें क्योंकि बात ये है कि he didn't mention whether the elements are distinct, माने हर एक सेट में अलग-अलग एलिमेंट्स है, कि हो सकते हैं कुछ कॉमन भी है, माने उनमें क्या क्लैरिटी इज नॉट गिवन टू अस। तो मैंने आपने को समझना है, डिस्टिंक्ट मेंशन नहीं किया है चलिए, डिस्टिंक्ट मेंशन किया उसका मतलब डिस्टिंक्ट लेने का, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स करके मेंशन नहीं किया उसका मतलब कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं, व्हाई नॉट, राइट। अच्छा, तो A1, A2, A3 एंड सो ऑन, A30 with 30 सेट्स with 5 एलिमेंट्स ईच, माने हर एक सेट में कितने एलिमेंट्स है, 5। तो टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे पूरा सेट्स मिला के 150, बट रिमेंबर 150 में कॉमन एलिमेंट्स होंगे, माने हमने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को काउंट किया, माने कॉमन वाले एलिमेंट्स मिला के सबको काउंट किया, तब जाके 150 होंगे, है ना। वी नीड टू कीप दिस इन माइंड, राइट। अच्छा, ओके। एंड B1, B2, अच्छा, हाउ मेनी एलिमेंट्स ईच इज सेड, 5 एलिमेंट्स ईच, अच्छा। B1, B2, B3 and so on, Bn, उसका मतलब कितने सेट्स है B में, दिस इज नॉट मेंशन्ड। B1, B2, B3 and so on, Bn are n sets, माने कितने हैं, we don't know, with 3 elements each, with 3 elements each,
राइट। अच्छा, तो अगर हमने से अच्छा, तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे सर ये सारे सेट्स मिला के? 3 है, बट देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि इनमें से कुछ एलिमेंट्स आर कॉमन। ओके, एनीवे, नाउ ही हैज गिवन अस कि यूनियन I is equal to 1 to 30 AI is union J is equal to 1 to N Bj is equal to S, माने एक सेट S है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि I is from 1 to 30, इसका मतलब I का वैल्यू 1 फर्स्ट which is A1, माने सेट A1। इसके बाद I की वैल्यू क्या डालेंगे 2 which is सेट A2। इन सारे सेट्स का यूनियन इज इक्वल टू सारे सेट्स B जो है उनमें भी जो भी एलिमेंट्स है उन सबका, जितने भी सेट्स है उन सबका यूनियन, माने A के सारे सेट्स का यूनियन और B के सारे सेट्स का यूनियन इज गिविंग यू सम सेट S, सम सेट S, इवन यू कैन मेजर एज यूनिवर्सल सेट हो सकता है, एक सेट S है, राइट। अच्छा, अब देखो, नाउ ही हैज गिवन अनदर कंडीशन कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट S, each element of set S belongs to 10 of AIs and exactly exactly 9 of BJ's find N। Now this is no doubt a very difficult question। आगे क्वेश्चन समझ में? अच्छा, अब देखो ये अपने को समझना है कि each element of set S, so set S में कुछ एलिमेंट्स हैं, how many would you? अगर ये सेट S है उसका मतलब अपन एटलीस्ट उसमें एलिमेंट्स को तो रिपीट नहीं करते, तो S में कुछ एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी वी डोंट नो, से m एलिमेंट्स हैं या x एलिमेंट्स, कुछ भी दे सकते हैं। चलो लेट्स कंसीडर कि सेट S में m एलिमेंट्स हैं, राइट। so each one of those elements belongs to exactly 10 of AIs। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो सेट S का एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट आपने लिया 1, और ये 1 जो है वो कितने सेट्स में रिपीट होगा? 10 सेट्स में रिपीट होगा, माने सेट A जैसे कि 30 सेट से एक है, उनमें 10 सेट में वो 1 रिफ्लेक्ट होगा। जैसे कि इसका एक और एलिमेंट लिया 2, वो भी कितने सेट्स में रिपीट होगा? 10 सेट्स में। अगर हमने एक और एलिमेंट लिया 3, वो भी कितने सेट्स में रिपीट होगा? 10 सेट्स में। अगर मान लो हमने इसमें m एलिमेंट्स लिया सेट S में, सेट S में अगर m एलिमेंट्स लिया है ना, करेक्ट, वो सो बेसिकली कि वो कितने एलिमेंट्स होंगे पूरा मिला के, माने इनमें से फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 10 सेट्स में रिपीट हुआ, माने 10 बार रिपीट हुआ होगा, सेकंड एलिमेंट भी 10 बार रिपीट हुआ है, थर्ड एलिमेंट भी 10 बार रिपीट हुआ है, लास्ट एलिमेंट भी 10 बार रिपीट हुआ है, माने हर एक एलिमेंट 10 बार रिपीट हो रहा है, माने 10m, माने इसमें कि इसके जो m एलिमेंट्स जो है वो 10m टाइम्स होंगे इसमें, पक्का? कैन यू से दैट? पक्का, क्योंकि हर एक एलिमेंट 10 सेट में है, दूसरे एलिमेंट भी कहीं कोई 10 सेट में होगा, माने कि इसके जो m एलिमेंट्स जो है कौन सा इसके हर एक 10 बार रिपीट हो रहा, तो टोटल मिला के कितने एलिमेंट्स होंगे? 10m। अच्छा, कैन आई से कि 10m इज इक्वल टू 5 into 10 150, कैन ठीक ठीक सोचो, क्योंकि सारे एक को मिला है ना, जैसे कि अब मैं एक काम करूंगा कि देखो
total elements of AIs will be 5 into 30 which is basically 150. इसका मतलब क्या, ये क्या है बेसिकली, ये कौन है, ये सारे एलिमेंट्स कौन है जो सेट ए के, एंड मोरओवर इसमें कुछ रिपीटेड एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स है उन सारे एलिमेंट्स को काउंट किया, सारे एलिमेंट्स को, राइट। और अगर एक एलिमेंट 10 बार रिपीट हो रहा तो सबको काउंट कर लिया हमने, मैंने 10 बार काउंट कर लिया, तो टोटल सारे एलिमेंट्स को ऐड किया तो कितने आ रहे हैं, 150 है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, लेट्स सेट S हैज m एलिमेंट्स, ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट बाय डिफॉल्ट है, तो मैंने एक सेट की बात कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, है ना। अच्छा, तो क्या है, मैंने क्या बताया कि each element of set S is present in exactly 10 sets of A, 10 sets of AIs, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि सेट S में m एलिमेंट्स है, वो m एलिमेंट्स जो है वो कितने बार रिपीट होंगे, हर एक कितने बार रिपीट होगा, 10 टाइम्स। सो टोटल सेट S के जो एलिमेंट्स है वो कितने होंगे, 10m होंगे, और वो सारे 10m जो एलिमेंट्स है वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया पहले, और सारे मिला के कितने हो रहे हैं ऑलरेडी, 150, है ना। सो समझ में आ रहा है, so what are we discussing, so therefore we can say कि चलिए 10m is equal to 150, so m is equal to 50, माने m में कितने एलिमेंट्स है, बेसिकली 50 एलिमेंट्स है ना। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। अब देखो रिवर्स भी अपन समझने की कोशिश करें कि सेट S में 15 एलिमेंट्स है, अगर मान लो पहला एलिमेंट है 1, वो एक एक कितने सेट्स में रिपीट होगा, 10 सेट में। दूसरा एलिमेंट 2, वो भी 10 सेट में रिपीट होगा। तीसरा एलिमेंट 3, मान लो दो भी 10 सेट में रिपीट होगा। ऐसे 15 एलिमेंट्स है, कितने बार रिपीट हो रहे हैं, हर एक 10 बार रिपीट हो रहे हैं, तो टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 150, और 150 को हमने यहाँ अरेंज किया एक एक वगैरह ऐसा करके, है ना। अच्छा, तो तब जाके देखो 5 into 30 150 हो गया, है ना। तो बेसिकली हमने क्या किया, पहले हमने टोटल एलिमेंट्स निकाला एक एक, बट रिमेंबर यहाँ रिपीटेड एलिमेंट्स भी है, वी नीड टू कीप दैट इन माइंड, क्योंकि यहाँ पर भी तो रिपीटेड एलिमेंट्स है 10m में, तो 10m is 150, so m is 50। तो सेम लॉजिक कैन अप्लाई फॉर b आल्सो, b के लिए भी क्या करें, therefore है ना, टोटल एलिमेंट्स ऑफ bj's के टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, bj सेट्स कितने हैं, n, और हर एक इसमें 3, तो टोटल कितने होंगे, 3, करेक्ट। अच्छा, अब देखो अब each element of set S is repeated exactly 9 of bj's, है ना। माने सेट का फर्स्ट एलिमेंट 9 टाइम्स रिपीट होगा b में, सेकंड एलिमेंट भी कितने बार रिपीट होगा, थर्ड एलिमेंट भी 9 टाइम्स, लेकिन कितने एलिमेंट्स है S में, n, which is basically 9n, correct, and that should be equal to 3n, but 9 into n तो अपन जानते हैं 8 is 3n, so n कितना होगा, 3 3 15 3 45, that means there have to be how many sets, b के 45 सेट्स होना चाहिए। तो एक बहुत ही ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन, मैं बहुत सोचना पड़ता है आपको कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। मैं इवन आई काइंड ऑफ थिंक, अरे यार ये क्या करना है, ऐसा करना है मुझे ना कभी कभी ये चीज नहीं करता है क्वेश्चन, एनीवे बट समझ में आ गया लिटिल बिट। मैंने अब देखो जेडब्ल्यू है ना, वो सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, सो यू वुड टिपिकली एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन एज इंटीजर टाइप का एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन ये क्वेश्चन, है ना। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस अगेन
है ना, घर जाने के बाद फिर से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ओके, सो वी स्टॉप हियर। तो टुमारो इज संडे, है ना, सो कल रिकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ नहीं होगा, अगर होगा तो घर पे फोन आएगा, ठीक है। सो मंडे अपन स्टार्ट करेंगे रिलेशंस, राइट।